हाँ शुरू So, good शुरू afternoon, करिए। everyone. Sir, welcome. Very good to see you. And we know you have been occupied in back to back discussions. It's a pleasure to see you. Good afternoon, everyone. My name is Bhupinder Singh. I am the Secretary of Indian Exhibition Industry Association and CEO Messe Munchan India. Dear industry colleagues, I have the pleasure to welcome a visionary leader with great ideas and an innovative, a leader who has put forward the idea of getting development in the center stage of political activity and is working to promote it in political and social circles. Someone who's always graceful under tremendous pressure and hence extremely inspiring. Someone whose ability to provide out of box solutions, practical solutions in unmatched. Sir, on behalf of entire industry, we extend a very warm welcome to you, Gadkari Sahib. Shri Nitin Gadkari ji is Minister for MSME and Road Transport and Highways. Sir, we thank you for your time today. And with our entire exhibition community, which has been a big contributor and propeller to the growth of MSMEs. Sir, while thousands of people are watching this, we will also record this and put this on IEIA website for later viewing. And we also thank Ravi Saab for making this meeting possible. Ravi Bhai, thanks for your efforts for connecting us to the minister. Would you like to say something, Ravi ji? Please unmute, sir. Ravi ji, you need to unmute. Thank you, Bhupinder. So I will once again thank Honorable Minister for his time today for us, all the members of the Indian Exhibition Industry Association. And as a exhibition organizer for the past 2 decades and also the event, the venue operator for last couple of years, I can only say that the industry which was poised for a growth has suddenly come to standstill because of this disruption. And it's not just exhibition organizers or the venue operators or the exhibitors, but also the whole lot of entire ecosystem of the trade and commerce dependent on this. And I think in this period, one good thing, a positive thing is that we got very good thrust from MSME Ministry recently. The package Honorable Minister announced. I'm sure some of us who are already MSME registered members will have the benefit of that liquidity and maybe funds of fund equity infusion for growth. But I would like to thank Nitin ji for modifying the definition of MSME. Because with this modified definition of MSME, I think now many of us, at least the exhibition organizers and also maybe some venue operators, can come in the definition of the MSME. So with this, I think I will leave other details to Bhupinder and Bala to talk about it. But one small request I will have to Nitin ji, during his speech, he should clarify that, sir, when Honorable Finance Minister yesterday or day before yesterday announced this MSME package, she mentioned that now the MSMEs will be given special assistance or support for participating in the e-platform because event and exhibitions will not happen. So there is some confusion. I'm sure this is in addition to the whatever assistance you give for participation in the exhibition and not in lieu of that. So just this clarification in your speech. And with this, I will hand it over to Bhupinder again. Nitin ji, we have all heard you many times, and even when you are not announcing a package, we see the audience is almost every time enthused to hear you. So your leadership has always beamed with positivity, which is very helpful and which is what we need. Sir, as you know, and we have shared a short presentation with you, I would like to take you through some slides with your permission. And before that, sir, if you like to share something with us. Yes, please. सर आपका प्रेजेंटेशन मैंने पढ़ा ही पूरा और थोड़ा सा देरी हुई आज क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसके पहले सेशन में मैं वाइस चांसलर और सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के साथ था तो काफी देर हुई है आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट
मैंने पूरा आपका ये पढ़ लिया है। मेरा रिक्वेस्ट है मैं कुछ बातें बता दूं और फिर आपके क्वेश्चन कर लीजिए, तो दोनों की बातों में हो जाएगा। मैं शुरू करूं? इफ यू परमिट जी मी, सर, कैन आई प्लीज। स्टार्ट? ठीक। हाँ सर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो एमएसएमई के डेफिनेशन के बारे में थी, और इसके कारण आपको भी इसका बेनिफिट नहीं मिलता था। जो एग्जिस्टिंग इन्हें आज जो इसके पहले जो पुरानी प्रीवियस सिस्टम थी, उसमें क्लासिफिकेशन था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। उस समय माइक्रो में प्रीवियस सिस्टम में थी एमएसएमई के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख, और सर्विस सेक्टर के लिए था टर्नओवर 10 लाख। अब ये माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट हुई 1 करोड़ और टर्नओवर हुआ है 5 करोड़। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ये प्रीवियस इसमें था मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट 5 करोड़, वो हो गई अब 10 करोड़। टर्नओवर था 2 करोड़, अब हो गया 50 करोड़, यानी 25 गुना बढ़ा है। और मीडियम के लिए जो हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट थी 10 करोड़, वो हो गई 20 करोड़, और जो टर्नओवर 5 करोड़ था वो हो गया 100 करोड़। तो 100 करोड़ करने के बाद ये जो आप लोगों की जो बिजनेस है, इसके पहले आपको एमएसएमई का कोई बेनिफिट ही ज्यादा नहीं मिलता होगा। तो पहली बात, आप एमएसएमई के अंडर कवर हुए हैं, और इसलिए एमएसएमई की जो स्कीम्स है वो आपको अप्लाई होगी, और इसमें आप रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और आपके पास अगर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, तो गवर्नमेंट ने जो पैकेज जाहिर किया है, बैंक में रिस्ट्रक्चर करने की बात है, 20% एडिशनल विदाउट कोलैटरल वर्किंग कैपिटल की बात है, इन सब बातों का आपको फायदा होगा। मैं 2 बातें इंपॉर्टेंट कहूंगा आपका। मैंने ये जो देखा, इसमें जीएसटी का कम करना चाहिए, या जो आपने कहा है कि पैकेज में 10% इंस्टीट्यूट इंडियन ऑर्गेनाइज, अब ये जो पूरा पैकेज है वो सेक्टर वाइज नहीं हुआ है, पूरे एमएसएमई को हुआ है, तो इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। Yes, I'm putting it. जीएसटी रेट जो है उसके बारे में कहा है, उसमें तो अभी कुछ होने की संभावना नहीं है। ये ई प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे भी केवल ऊपर से उतना जितना ही मालूम है, इसमें एग्जैक्टली इसका क्या क्या होगा तो मैं आपको ये बाद में ही बता पाऊंगा। पर कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन फैसिलिटी आपको मिल सकती है। अभी जो एग्जिस्टिंग आपकी वर्किंग कैपिटल है, विदाउट कोलैटरल 20% बढ़ सकता है, और कोई फी उसके लिए नहीं लेंगे, तो ये आपको मिल सकता है। रेंटल एग्जिट, मुझे एक आपसे कहना है, बाकी बातों के बारे में आपसे डिटेल में मैं जरूर चर्चा करूंगा। एक तो ऐसा है कि जॉइंट वेंचर हो सकते हैं क्या आपके, जैसे आज जर्मनी में जैसे फ्रैंकफर्ट है, बड़े से सिटी ऐसी है जो एग्जीबिशन पे चल रही है, तो क्या हम लोग फर्स्ट टायर सिटी, 2 टायर सिटी, सेकंड टायर सिटीज में ये एग्जीबिशन कम एंटरटेनमेंट, इसको प्रोफेशनल अप्रोच में कुछ देकर हम लोग इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ाकर कैसे काम कर सकते हैं। अभी दिल्ली में तो प्रगति मैदान का बहुत बड़ा काम हो रहा है, और जहां जहां विशेष रूप से जर्मनी में मैंने देखा, अभी फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट जिस कंपनी का है, उन्हीं का एग्जीबिशन में इंटरेस्ट है, वो भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर करके लाना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड जी। करना एग्जीबिशन की, और फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी दोनों को अपग्रेड करने का एक अपॉर्चुनिटी इस समय है, क्योंकि अब चाइना से लोग आपने देखा होगा, जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जापान के इन्वेस्टमेंट लोगों की चाइना में है, और जो इंडस्ट्री है वो अगर आउट ऑफ चाइना होना चाहते हैं तो उनने पैकेज दिया है। अब जर्मनी, जापान, यूके, स्पेन, इटली, यूएसए, अब कोई देश चाइना के साथ डील नहीं करना चाहता। और मुझे पता है कि आपका भी जो आप मटेरियल लाते थे वो चाइना से लाते थे बहुत सा, तो अब आपको नेचुरली अपने देश के एमएसएमई में कैसे तैयार हो, और इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट कम करना है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइजेस जो होंगे, उनको कैसी मदद हम कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं, इसके क्लस्टर्स भी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे आपको यही कहना है कि
हाँ, कठिनाइयाँ तो है, प्रश्न भी है। जो पैकेज हुआ है वो सेक्टर वाइज़ नहीं है, पूरे एमएसएमईज़ को हुआ है और इसके लिए जो बेनिफिट सबको मिलेंगे वो आपको भी मिलेंगे। अब ये लिमिट बढ़ाने के कारण आप एमएसएमई के कवरेज में आएँगे। दूसरा, हमने अभी एमएसएमई की स्कीम्स के लिए केवल नेशनलाइज्ड बैंक के काम करती थी। अभी एनबीएफसी, कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनको भी ऑथराइज किया है और एनबीएफसी को भी हमने स्ट्रेंथन किया इस बार। तो एनबीएफसी को भी स्ट्रेंथन करने से वो भी छोटे-छोटे फाइनेंस में आपको मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब समस्या भी है, पर हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और इस सेक्टर के बारे में ये आगे कैसे बढ़े, सभी शहरों तक परमानेंट इसको हम कैसे बढ़ाने, एमएसएमई के लिए हमको ई पोर्टल, ई मार्केटिंग का भी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कुछ जमा नहीं है। तो नेचुरली आपके बिजनेस में भी इसका इनोवेटिव अप्रोच में क्या एक्सपेंशन हो सकता है और इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे मैं नागपुर में हमारे यहाँ पास एक 900 हेक्टेयर जगह थी, तो मैं अभी बड़ा कन्वेंशन सेंटर खोलना चाहता था। तो मैंने कहा कि यहाँ शादी ब्याह भी हो सकते हैं, ताकि कुछ समय जब एग्जीबिशन नहीं होगा तो शादियाँ हो भी कर कुछ पैसा मिलेगा। तो एग्जीबिशन सेंटर में एकोमोडेशन होटल्स होंगे तो रहने की व्यवस्था हो जाएगी, जो दोनों बार बाहर भी और इसके लिए उपयोग में आएगी। तो इसके इकोनॉमिक वायबिलिटी और मॉडल के लिए टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें अपॉर्चुनिटी है ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं लॉकडाउन होने के बाद आप दिल्ली आइए, मैं भी आपके सेक्टर के मेन समस्या जो है वो पता है, पर बाकी और डिटेल में चर्चा करके हम जो भी इस सेक्टर को बढ़ाने की मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। इतना मैं आपको विश्वास देता हूँ। आपका ये मुझे मिला है पूरा और ये जो प्रेजेंटेशन है मैं अभी मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ दिल्ली और ज़रूर इसमें मैं ये करूँगा और ये आपके जो प्रमुख है रवि है, तो मुझे कॉन्टैक्ट में ही रहती है। तो मैं दिल्ली से अधिकृत रूप से कुछ बातों का जिससे मैं ये ई मार्केट प्लेस के बारे में जो है, उसके बारे में कैसे इलॉबरेट करना, इम्प्लीमेंट करना, मुझे भी थोड़ा डिटेल में एग्ज़ैक्टली करूँगा क्योंकि वेग में आइडिया आई है, तो वो देखने के बाद आपको बता पाऊँगा। फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको कोई पूछना है तो एक एक 2, 3, 4 प्रश्न आप शॉर्ट में पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर थैंक्स अ लॉट फॉर दिस क्लैरिटी एंड हमने पहले भी देखा है कि जिन चीज़ों को आप कर सकते हैं आप हाथ के हाथ कर देते हैं और जिन चीज़ों को आप नहीं कर पाते आप पोलाइटली मना कर देते हैं सर. सो दिस एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच इज हाईली अप्रिशिएटेड बाय ऑल ऑफ अस सर. And since most of our industry is MSME, it's a very loving industry, and there is lot of dedication and enthusiasm towards your initiative, sir. सर दो छोटे पॉइंट्स हैं. एक तो जो MSME में आपने रिविजन्स किए हैं, एक आपको मैं समझता हूँ आप एक्सेप्ट करते या नहीं मुझे पता नहीं, पर ये 100 करोड़ टर्नओवर जो किया है और आपके यहाँ मुझे लगता है कि इसमें बहुत लोग अब कवर हो जाएंगे क्योंकि इनका आपका टर्नओवर तो निश्चित रूप से 50, 60, 100 करोड़ तक होगा। तो ये 100 जी करोड़ वाला जो बड़ा है, इसका फायदा आपको मिलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। जी सर. सर ये इट्स अ हाईली अप्रिशिएटेड थिंग बाय द होल इंडस्ट्री. हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर वहाँ पे कि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, बिकॉज आपके बोलने के बाद कि एमएसएमई में रजिस्टर करो, हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं पूरी एग्जीबिशन इंडस्ट्री में दैट मोर एंड मोर कंपनी शुड कम एंड रजिस्टर. बट सर रजिस्ट्रेशन जब करने जाते हैं तो वहाँ पे एग्जीबिशंस करके कैटेगरी नहीं है सर. आई डोंट नो इफ इट इज पॉसिबल, बट अगर वो हो जाए तो वी ऑल विल फील इवन मोर कनेक्टेड टू दिस इनिशिएटिव सर. आप एक बार तुरंत इसके बारे में एक अलग रिप्रेजेंटेशन बनाकर तुरंत रवि के पास दे दीजिए, मैं दिल्ली भेजता हूँ, ये मैं करूंगा, ये हो जाएगा। Sir, thank you so much. And with respect to foreign investment, Nitin ji, our industry has immense potential to bring back investments. You see, we have seen big investments made by UK companies, Korean companies, German companies in India over last 15 years. Sir, दूसरा सारी exhibitions में जो India में on an average 15% participants are international. एक काम करिए, क्या सरकार में ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 टायर सिटी, मेट्रो सिटीज, इसके अलग-अलग लेवल पर आपको एग्जीबिशन के लिए लैंड अवेलेबल करके देना,
अगर लैंड अगर आपको रीजनेबल रेट में मिलती है तो इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी, और उसी लैंड पर वाटर पावर की योजना करके देना, और ये बड़े प्रमाण पर लोग इसको रिस्पॉन्स देते हैं। और ये अलग अलग प्रकार से कुछ कुछ जगह तो साल भर चल सकते हैं, इतना होता है। तो आपने जी क्या करना कि एक बार अगर आपने जो तंबू खड़े किए जी तो एक बार खड़े करने के बाद उस ग्राउंड पर अगर आपने 2 एग्जीबिशन के बजाय अगर 6-8 महीने के लिए 5 एग्जीबिशन 10 एग्जीबिशन प्लान किए, तो नेचुरली इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी। और जी मैंने देखा कि छोटे-छोटे हॉल बड़े-बड़े लेकर आज लोग 5 स्टार 3 स्टार होटल में भी जाते हैं, एग्जीबिशन करते, तो भी लोग रिस्पॉन्स देते हैं। लोग आते हैं और वहाँ जी प्रोडक्ट का भी प्रेजेंटेशन होता है, सेल भी होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है। तो थोड़ा-सा आप इकोनॉमिक अट्रैक्टिव मॉडल कैसे कर सकते जी हैं, और ये भी थोड़ा-सा देखो। और दूसरा, जिनका कन्वेंशन होता है, उनके एग्जीबिशन भी होते हैं। अभी ये धीरे-धीरे बहुत बड़ा है, पर वर्ल्ड में डेवलप हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ। और इसलिए क्या है कि आप एक ही एग्जीबिशन के लिए सब कुछ करोगे, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। और अगर एक समय 5-7 एग्जीबिशन एक साथ करेंगे, अलग-अलग विषयों के, तो शायद होगा। आई एम नॉट द एक्सपर्ट, पर आप थोड़ा-सा इसको सोचकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑन टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा करिए, तो मुझे लगता है जी ये बहुत वायबल इंडस्ट्री बन सकती है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने आपको इंडिया की और बाहर की एग्जीबिशंस में देखा है। आप जानते हैं सर इस चीज़ को, सिंस यू कोटेड द एग्जांपल ऑफ फ्रैंकफर्ट। सर, वर्ल्डवाइड exhibitions are considered to be economic growth engines. As you know, Germany, USA, China, and other parts of the world, they place a consistent focus on strength of their exhibition industry, sir. Because ये ना सिर्फ ब्रांड इमेज बढ़ाती है कंट्री का, बिकॉज आप जानते हैं बड़े बड़े ट्रेड शोज, चाहे जैसे हैनोवर की हम बात करें या बड़े ऑटो शोज की बात करें, तो ना सिर्फ ये कंट्री की इमेज में एक बढ़ाती है, बल्कि एमएसएमई इंडस्ट्री को बहुत बड़ी सपोर्ट देती है। सर, जर्मनी में आप जानते हैं आप ही का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया मिडिल स्टैंड, मतलब मेक इन इंडिया मीडियम स्केल कंपनीज, तो वहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग है सर, आप किसी भी वर्ल्ड की बड़ी एग्जीबिशन को उठा के देखिए, आप अगर उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 20-30 छोटी एमएसएमई कंपनीज ने उसको स्टार्ट किया था। एंड एवरी एग्जीबिशन टुडे विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट। तो सर, हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये थी, एंड आपने ऑलरेडी इतना कुछ दिया है, आपकी शुरू की अनाउंसमेंट से ही हमें बहुत रिलीफ मिला है। बट सर, हमारा एक एक मेन जो इशू अभी आ रहा है वो ये कि एग्जीबिशंस को मास गैदरिंग के साथ मिला के ना देखा जाए सर। सर, एग्जीबिशंस आर ऑर्गेनाइज्ड गैदरिंग्स विद अ स्ट्रक्चर। दे आर डिफरेंट फ्रॉम मास गैदरिंग्स। दे कैन बी हेल्ड विद सेफ्टी गाइडलाइंस, सो पीपल कम हियर फॉर बिजनेस। आई गेट योर पॉइंट। देखो, आप एक काम करो, आप कोरोना के गाइडिंग प्रिंसिपल को, जैसे 1 मीटर का डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, दूसरी बात एक समय कितनी एंट्री देना उसको रोकना, लोगों को एंट्री जो है वो आप आपका ऐप तैयार करके इतने ही लोगों को आज एंट्री मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी, फिर उसका समय तय करना। और इसके इसके साथ कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, सैनिटाइजर जाते आते समय लोगों को देना, और मास्क मैंडेटरी करना है। ऐसा करके आप कोई प्रपोजल तैयार करके मुझे दो, मैं होम मिनिस्टर को भेजता हूँ। और ये पहले जैसा है, हाँ हाँ, कभी भी आओ, कब भी आओ, कितने भी संख्या में आओ और घुसो, तो आप भी मरोगे, लोग भी मरेंगे और तकलीफ आएगी। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना होगा, उसके सिवा नहीं हो पाएगा। ऐसा करिए, व्हाट माय सजेशन इज, अगर एक आध दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल पूछना है तो पूछो, और बाकी डिटेल जो प्रॉब्लम है वो फिर मुझे भेज दो, और इसमें से मैं जो मेरे डिपार्टमेंट के वो भी सॉल्व कर दूंगा, और जो बाकी डिपार्टमेंट के करना है वो मैं मदद करूंगा आपको। Sure, sir. Bala, you want to quickly comment? Yeah. Namaskar, Gadkari sahab. This is Bala Subramanian. I'm the president of the association. हमने तो बहुत कुछ सारे चीज आपको दे चुका है, इसमें जो भी सुविधा हमें चाहिए वो आपको दे चुका है, आपने देख चुका है। एक ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूपेंद्र बताया, मैं बोलूंगा कि हमारी इंडस्ट्रीज लॉकडाउन हुआ है, फरवरी में हुआ है, और आगे चलकर कब शुरू होगा इसका हमें पता नहीं है। तो द एंटायर इंडस्ट्री इज इन अ टर्मोइल एंड दे आर ऑल ब्लीडिंग। मैंने आपको पॉइंट आउट करके कहा कि आज के स्थिति में वी नीड टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस। सही से। और ये समझते हुए मैंने आपको कहा कि मुझे ऐसा प्रपोजल दो कि हम लोग ऐप के ऊपर एंट्री और टाइम पक्का करेंगे, उस समय उन्हीं को एंट्री देंगे, 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क मैंडेटरी होगा, और ये सब बातों को रखकर हम लोग एग्जीबिशन के लिए करेंगे,
तो मैं होम मिनिस्ट्री को आपके लिए कहूंगा, और ये पालन किए बिना ये वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस। वो प्रपोजल वैसा होगा तो होगा, पुराने जैसा ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है, क्योंकि कोरोना वायरस कंट्रोल करना हमारे लिए आवश्यक है। तो ये बात को समझकर आप जरूर दीजिए, ये हो जाएगा, मैं कोशिश जी करता हूँ। हाँ। हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑलरेडी बना चुके हैं और हमारे पास तैयार है, तो अभी ये होते ही हम आपको सबमिट कर देंगे। तो इससे हमें ये चाहिए कि हमसे हमारा एग्जीबिशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हमारे तरफ से जितनी भी कोऑपरेशन है, हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन सब कुछ है साथ में, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ मेजर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी करना है हम जरूर करेंगे। तो इसका बहुत हमारा एक रिक्वेस्ट है। और मेरा और एक रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम हमारी एग्जीबिशन इंडस्ट्री है, हम कहीं पे भी नहीं है, अगर ना हम कॉमर्स में आते हैं ना टूरिज्म में आते हैं, तो हमें अगर हमारे कोई रिकग्निशन मिल जाए कि हम इंडस्ट्री सेक्टर के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इससे बड़ा हमारा सुविधा होगी कि हमारा एनकरेजमेंट होगा। इसके आप एमएसएमई में सर्विस सेक्टर करके तो आ सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है, उसमें क्या अड़चन है? हाँ जी सर, फिर वो हो सकता है सर, वो करेंगे सर। तो मैं वो कर दूंगा आपको, आप चिंता मत करिए, वो आप आइए मेरे पास, मैं कर दूंगा। ठीक है सर। Now maybe we can ask Mr. Anbu and Mr. Rakesh ji to put one point to Minister. Yeah. Thank you, Balaji. आदरणीय श्री गडकरी जी, बहुत बहुत इतना बड़ा हमारे लिए बम्पर पैकेज एमएसएमई में दिया है और उससे सचमुच में हमें एक संजीवनी मिली है। माननीय मंत्री जी, सी सिटी में सेंटर आने चाहिए और आपको मालूम है कि अभी जैसे सरकार एक मिनट, आज 1 घंटा देरी हुई है, बाकी भी दूसरे भी लोग रुके हुए हैं, एकदम स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए। ये लास्ट क्वेश्चन और बाकी आप मुझे लिखित रूप में दीजिए, मैं मदद करूंगा। एक बात ये है, आपका जो विचार है कि हम लोग कुछ सेंटर लेके आए टियर 2 टियर 3 सिटी में, वो विचार बिल्कुल दुरुस्त है, हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में खासतौर पे हमारी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में हम लोगों ने ऐसा ही कुछ प्रयास पधारे भी हैं। वो एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें आपने कई एग्जीबिशन में आपने वहां देखा है, वो 150 शेयर होल्डर के साथ मिल करके एक एसपीवी बना करके हम लोगों ने वहां शुरू किया। सर आप क्वेश्चन पूछिए सर, मेरे पास समय नहीं है। उसमें सर ये है कि हमारे को अभी आज की हालत में सस्टेन और मेंटेन करना वेन्यू का सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। तो प्लीज जो आपका फंड बना है उसमें हमें कुछ